Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Now we are starting today's third lecture, Surface Chemistry, the properties of surfaces. What is the phenomena of surface? Surface are basically described the many physical and the chemical process occurs at the different interfaces. So we start today's absorption process. What is the phenomena of absorption? Absorptions are basically described the one substance enter into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk of another substance. So we can say that absorptions are basically the phenomena in which molecules are completely absorbed in a particular substances. यहाँ पे molecules क्या हो गए, आके absorb हो गए, अंदर आ गए, तो it's mean कि absorption का phenomena है, absorption process है. Comparatively, the adsorption phenomena, adsorption is second is surface phenomena. This phenomena are basically described as in which one substance accumulate on surface of another substance in higher concentration. So we can say that these molecules are completely adsorbed in a particular surface. ये molecules surface के ऊपर मौजूद हैं, surface के अंदर absorb नहीं हुए हैं, तो ये phenomena आपके पास adsorption phenomena कहलाएगा. Second is adsorption process. According to absorption and adsorption process के relationship से हम यहाँ पे adsorption की study करेंगे with the relationship of adsorbent, adsorbate, adsorptive process. So यहाँ पे एक process क्या है? Adsorbent. Adsorbent आपके पास क्या है? Basically describe कर रहा है कोई ये solid surface है, तो solid surface को हम क्या कहेंगे? Adsorbent कहेंगे. Adsorbent study किसकी कर रहा है? कि इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स जितने भी आके एक्यूमुलेट हुए हुए हैं यानी सरफेस पे मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस ऑफ एडसॉर्प्शन प्रोसेस. यहाँ पे बताया गया है कि सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट हुए हैं ऑन सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इन हायर कंसंट्रेशन. सो मींस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, सॉलिड सरफेस पे मौजूद है, तो ये आपके पास एडसॉर्बेट कहलाएगा. यानी ये मॉलिक्यूल्स क्या है, कंप्लीटली क्या है, इन अ सॉलिड सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. सो वी कैन से दैट the substance which is being adsorbed on a surface of another substance, तो ये आपके पास adsorbate कहलाएगा. Second is adsorbent. Adsorbents are basically define क्या कर रहे हैं, the substance present in bulk. अब bulk पे मौजूद हो सकते हैं वो substance surface के ऊपर. On the surface of adsorptions are taking place reactions. तो ये आपके पास adsorbate का phenomena और ये आपके पास adsorbent का phenomena. Adsorbate आपके पास gaseous या vaporous position में हो सकते हैं और adsorbent आपके पास क्या होगा, solid surface होगा. This phenomena are basically explained as adsorptive phenomena. Adsorptive क्या है, जो molecule surface पे आके attach हो रहे हैं वो आपके पास adsorptive का process देंगे, यानी वो आपके पास adsorption reaction देंगे. तो ये आपके पास phenomena क्या कहला रहा है, adsorption phenomena, जिसको हम adsorptive से relate कर रहे हैं. ये तमाम molecules आपके पास adsorptive का reaction देंगे. ये मॉलिक्यूल्स तो सॉलिड सरफेस पे मौजूद हैं, अगर यही मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के अंदर आ जाए तो ये प्रोसेस आपके पास क्या बन जाएगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बन जाएगा. यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए सरफेस के अंदर. सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, सरफेस के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स का प्रोसेस आपके पास एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कराएगा. इसकी ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो डिस्क्राइब कर रही हैं एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्प्टिव प्रोसेस को. अब यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप बताया गया है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट गिव राइट्स थ्रू द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. ये दोनों प्रोसेस मिलकर आपके पास क्या बनाएंगे, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस बनाएंगे. सेकेंडली डिस्कस करेंगे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के टर्मिनोलॉजीज को. कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हमने बताया कि बेसिकली सरफेस फिनोमेना है. एब्जॉर्प्शंस आर बेसिकली द बल्क फिनोमेना. मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हुए होते हैं कंप्लीटली सरफेस के अंदर. और एड्सॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स आर एक्यूमुलेट हुए हैं टू अनदर सब्सटेंस, तो ये आपके पास एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस बता रहा है. इसी तरीके से एड्सॉर्बेंट आपको पास डिस्क्राइब कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, सरफेस पे मौजूद है, सॉलिड सरफेस पे मौजूद है. ये आपके पास एड्सॉर्बेट का फिनोमेना है विच इज एड्सॉर्ब ऑन अ सॉलिड सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. जो सॉलिड सरफेस में आके एड्सॉर्ब होगा वो फिनोमेना आपके पास एड्सॉर्बेट का फिनोमेना कहलाएगा. सेकेंडली आपके पास terminology है sorption process. Sorption process are basically defined as the adsorption and absorption phenomena. ये adsorption से और absorption के phenomena से मिलके बनता है, इसको हम कहते हैं sorption process. अब यहाँ पे हम डिफरेंस को डिस्क्राइब करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एब्जॉर्प्शन यानी AB का डिफरेंस है और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. इन दो डिफरेंस, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में और एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में. तो यहाँ पे आपके पास ये बताता है कि एब्जॉर्प्शन आर बेसिकली द बल्क फिनोमेना
एंड एड्सॉर्प्शन आर बेसिकली द सरफेस फिनोमेना। बल्क फिनोमेना से क्या मुराद है? बल्क फिनोमेना से मुराद है कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर मौजूद क्या है? वाटर मौजूद है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? बल्क में मौजूद है, ज्यादा मौजूद है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं पूरी सरफेस के अंदर। कंपैरेटिवली दिस वन इज द सरफेस फिनोमेना। यहाँ पे हम स्टडी क्या करेंगे? ऊपर की स्टडी करेंगे, सरफेस की स्टडी करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस। हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सरफेस फिनोमेना की। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है यहाँ पर, कंप्लीटली क्या होते हैं? गैदर नहीं हुए होते। तो इट्स मीन्स यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है? neither exothermic और endothermic reaction, comparatively this one is exothermic reaction. neither exothermic and endothermic reaction, यहाँ पे energy is neither absorbed or nor evolved. Comparatively this one is exothermic reaction, so the energies are easily released. सरफेस पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अटैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना डिस्क्राइब कर रहा है, तो एड्सॉर्प्शन का मतलब सरफेस फिनोमेना आपके पास आ रहा है। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सरफेस पे जब मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो इनका क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई आके दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होता है वहां पर, तो वहां पे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगा? एनर्जी को बढ़ा देगा, यानी एनर्जी को रिलीज करेगा। सेकेंडली आपके पास क्या है? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर में गैदर हुए हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है? यूनिफॉर्म पोजीशन में मौजूद है, यानी ऑल सब्सटेंस आर सेम पोजीशन। कंपैरेटिवली दिस वन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म। आपके पास क्या है? लिमिटेड सरफेस है। सरफेस की स्टडी करें, सरफेस का मतलब ऊपर की लेयर की स्टडी करें, तो इसका मतलब सरफेस क्या है? आपके पास लिमिटेड मौजूद है। अगर सरफेस पर मॉलिक्यूल्स भर गए तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा? उसका कम होने लगेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की स्टडी बताई गई है। सेकेंडली आपके पास कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। एग्जाम्पल रिलेट टू द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे टू द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या है? चॉक है इन वाटर, ये कंप्लीटली क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर। सेकेंडली आपके पास स्पंज दिया हुआ है वाटर के अंदर, अगर हम इसको क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं तो वाटर जो होता है कंप्लीटली क्या होता है? स्पंज के अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकेंडली बिस्किट या टी बिस्किट्स की एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो ये जो सब्सटेंस हैं, जो सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो आपके पास क्या कहलाते हैं? एड्सॉर्बेंट कहलाते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। सेकेंडली आपके पास द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, जो अपने आप को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट प्रोसेस। ये आपके पास क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। तो यहाँ पे भी दो डिफरेंस मौजूद है आपके पास, एब्जॉर्बेंट का और एड्सॉर्बेट का। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को। तो एड्सॉर्प्शन में भी आप बेसिकली हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस का फिनोमेना है। यानी अगर यहाँ पे आपके पास बोर्ड दिखाया गया है तो बोर्ड पे हम क्या करेंगे? चौक जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेट होगी ऑन द सरफेस। सरफेस पे हम क्या करें? इसको लिख रहे हैं। चौक जो बोर्ड के अंदर जाके एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कंप्लीटली क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, सरफेस के ऊपर मौजूद है, हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो जो खुद को आके एब्जॉर्ब करवाएगा वो आपके पास एड्सॉर्बेट कहेगा। ठीक है, हम इसको एड्सॉर्बेट कह सकते हैं। इसको हम सॉल्यूट से भी कंपेयर कर सकते हैं। और जो आपके पास क्या हो रहा है? एड्सॉर्ब खुद करेगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा? एड्सॉर्बेंट कहलाएगा, यानी हम इसको सॉल्वेंट से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या बताया गया? द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एड्सॉर्ब दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट, द सब्सटेंस व्हिच एड्सॉर्ब दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल्स भी आपके पास दी गई हैं। सिलिका जेल वगैरह हम यूज करते हैं तो वो आपके पास एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में काम आता है। इसी तरीके से आपके पास जेल है, रेजिन्स वगैरह की एग्जांपल्स भी हम एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में रिलेट कर सकते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस बेसिकली होता क्यों है, हम एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्यों करवाते हैं और किस वजह से होता है यहाँ पर। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को अकॉर्डिंग टू द सरफेस टेंशन फिनोमेना। यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है? कंप्लीटली ऑक्यूपाई किए हुए हैं इन ऑल द डायरेक्शन, यानी इंटीरियर मॉलिक्यूल्स पुल इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, कंपैरेटिवली दिस वन इज अ सरफेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस। तो इन दोनों के डिफरेंस रिलेशनशिप है। इसने तमाम अपनी क्या की गई हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तमाम जगह लगाई हुई है। कंपैरेटिवली ये सोल्यूशन जो है, यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो आपके पास क्या है? अटैचमेंट इजीली हो रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स की स्टडी है ये बेसिकली अनबैलेंस है।
अनस्टेबल है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली इस एनर्जी लेवल के मुकाबले में, क्योंकि इस ये यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बल्क ऑफ द लिक्विड, बल्क में मौजूद है। इसके नीचे सरफेस पे जितने भी मौजूद जितने भी लिक्विड्स हैं वो आपके पास क्या मौजूद है, बल्क में मौजूद है तमाम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बल्क ऑफ द लिक्विड, सो मीन्स यहाँ पे लेस एनर्जी है, स्टेबल है और बैलेंस है। अगर स्टेबल होगा तो वो बैलेंस भी होगा, बैलेंस होगा तो इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा कंपैरेटिवली इस मॉलिक्यूल के मुकाबले में। तो अपने आप को अगर यहाँ पे मैं कोई मॉलिक्यूल की अटैचमेंट करवाऊं इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हैवी मॉलिक्यूल की अटैचमेंट करा रही हूँ तो इजीली अटैच तो हो जाएगा सरफेस के मॉलिक्यूल पे, लेकिन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करा लेगा उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर अपने आप को। ठीक है, तो ये आपके पास दो डिफरेंट फिनोमेना है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ सरफेस टेंशन में हम डिस्कस कर चुके थे इसको। एक आपके पास सरफेस फिनोमेना है और सेकंड आपके पास क्या है, फोर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया हमने, एडसॉर्प्शन को भी डिस्कस किया, तो इन दोनों के रिलेशनशिप से हमें पता चलता है कि सॉर्प्शन प्रोसेस बनता है। सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल द डाइंग ऑफ फैब्रिक, हम कोई डाई कराते हैं किसी भी फैब्रिक के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। वो फैब्रिक पे जो पर्टिकुलर डाई कलर हो जाता है वो फैब्रिक पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर चला जाता है। अब जो कलर हमें नजर आ रहा है, जो हमने करवाया है, वो सरफेस पे मौजूद होता है। तो यानी एक एब्जॉर्प्शन का होना और सरफेस पे मौजूद होना, ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉर्प्शन का प्रोसेस बनाते हैं। तो डाइन ऑफ फैब्रिक प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, सॉर्प्शन प्रोसेस कहलाता है, जो एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन से मिलके बनता है। इसी तरीके से रिमूव ऑफ एडसॉर्ब मॉलिक्यूल्स, यानी रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब मॉलिक्यूल्स प्रोसेस मिलके क्या बनाते हैं, आपके पास एडसॉर्प्शन का प्रोसेस बनाते हैं। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट, इन दोनों को आपस में क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए, तो आपके पास क्या प्रोसेस बनता है, डिसॉर्प्शन का प्रोसेस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दे सकते हैं इजीली कि डिसऑर्प्शन प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, कि आप इजीली एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट को अलग करेंगे तो आपके पास डिसऑर्प्शन प्रोसेस बनेगा। सेकेंडली, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। अब कितनी टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन होते हैं, इनके क्या रिलेशनशिप हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन आपके पास क्या है, वीक है। वीक है तो जाहिर सी बात है वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेवल का यहाँ पे डिस्कस किया है यानी, तो अट्रैक्शन लेवल क्या है, वंडर वॉल फोर्सेस है। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन का रिएक्शन हो रहा है, फिजिसॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ आपके पास है स्ट्रॉन्ग है, अगर एड्सॉर्प्शन आपके पास स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वहां पे क्या बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरेट हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पे, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो प्रोसेस आपके पास क्या कहलाएगा, केमिसॉर्प्शन का प्रोसेस कहलाएगा। यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके दरमियान, यहाँ पर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के दरमियान, तो रिलेशनशिप आपके पास क्या कहलाएगा, केमिसॉर्प्शन का प्रोसेस कहलाएगा। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन होते हैं according to physisorption and chemissorption process. Physisorptions are basically physical adsorption कहलाती है and chemissorption process are called chemissorption process. यहाँ पर आपके पास दो लेयर्स, दो आपके पास पिक्चर से इसको कोरिलेट किया गया है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में आपके पास क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मल्टी लेयर फॉर्मेशन में, ये आपके पास क्या है, एड्सॉर्बेंट, ये भी एड्सॉर्बेंट है, इट्स मीन सॉलिड सरफेस का जिक्र किया जा रहा है। अब मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे आपके पास एड्सॉर्प्टिव्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, एड्सॉर्बेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है मल्टी लेयर फॉर्मेशन, यहाँ आपके पास मोनोलेयर फॉर्मेशन। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है कंपैरेटिवली, यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है, यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है। बॉन्ड्स टू द सरफेस ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, यहाँ आपके पास बताया गया है, यहाँ पे हमने जिक्र किया है कि केमिकल बॉन्डिंग अट्रैक्शन हो रही है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है तो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे अगर क्या हो रही है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इजीली क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगी तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ही रिएक्शन जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीपल रिएक्शंस भी जनरेट हो सकते हैं। तो आपके पास जो डिफरेंट फिनोमिना है अकॉर्डिंग टू मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना एंड द मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना।
ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आर जनरेट, यहाँ से हम हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जिक्र किया गया है कि व्हाट इज द फिनोमेना अकॉर्डिंग टू द फिजिस-ऑप्शन प्रोसेस एंड द केमिस-ऑप्शन प्रोसेस। फिजिस-ऑप्शन एंड द केमिस-ऑप्शन प्रोसेस को आपने यहाँ पे रिलेट किया गया है। यहाँ पे मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन का जिक्र किया जाता है कि यहाँ पे मल्टीलेयर फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आपके पास मल्टीलेयर्स फॉर्मेशन एंड द मोनोलेयर्स फॉर्मेशन इन अ एड्सॉर्बेंट सरफेस। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर बन सकती है, दूसरी लेयर भी, तीसरी लेयर भी जनरेट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या है, सिंगल लेयर आपके पास जनरेट होगी। ऑल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स आर केमिकल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रही है, सिर्फ एक लेयर जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन की गई है अकॉर्डिंग टू द फिजिस-ऑप्शन प्रोसेस एंड द केमिस-ऑप्शन प्रोसेस। ये आपके पास लो, या आपके पास ऑल द टेम्परेचर्स पे इजीली काम कर सकता है। कंपैरेटिवली दिस वन इज लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इजीली अलग भी हो सकते हैं। तो डिफरेंस आपके पास बताया गया है, द कंपैरिजंस ऑफ द फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड द केमिस-ऑप्शन प्रोसेस कॉज इंटरमॉलिक्यूलर वन डर वाल फोर्सेस। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड हमने बताया कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, स्पेसिफिक है, ये आपके पास स्पेसिफिक फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे आपका लिक्विफाइबल गैसेस एब्जॉर्ब ईजली। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज अ लार्ज अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट है तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, लो टेम्परेचर पे काम कर रहा है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का भी रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ पे भी आपके पास चेंज ऑफ प्रेशर पे डिपेंड करेगा। नो सच इफेक्ट्स। मल्टी लेयर फॉर्मेशन, यानी मल्टी लेयर लेयर्स फॉर्म करेगा एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे। यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, मोनोलेयर फॉर्मेशन करेगा। ये दो डिफरेंट फिनोमेना अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस एंड द केमिस-ऑप्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल इसकी देखेंगे। एग्जाम्पल आपके पास क्या दी हुई है, फिजिस-ऑप्शन एड्सॉर्बेंट्स ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। अब यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन से आपके पास क्या प्रोसेस बताया गया है कि अगर आपके पास क्या दिया है, चारकोल को हम यूज करते हैं फॉर द डीकलराइज, फॉर एड्सॉर्ब सब्सटेंस। तो यहाँ पे एड्सॉर्ब सब्सटेंस से क्या मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोल माइन में वगैरह में जो लोग काम करते हैं कोल माइन में, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर क्या यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं। उस मास्क में क्या होता है, चारकोल को एक्टिवेट कराया जाता है ताकि जितनी भी टॉक्सिक गैसेज हो वो इनहेल ना करे। वो इनहेल करेगा तो वो सारी क्या है, टॉक्सिक गैसेज हैं। तो उन तमाम टॉक्सिक गैसेज को क्या करना है, हमने इसको एक्टिवेट कराना है, एड्सॉर्बेंट करना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जितनी भी टॉक्सिक गैसेज होती हैं वो चारकोल क्या करता है, उसको एड्सॉर्ब कर लेता है और प्यूरिफाई कर देता है उस पर्टिकुलर गैस को। तो सो ऑक्सीजन आपके पास क्या होती है, इजीली प्यूरिफाइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपके पास सरफेस पे क्या मौजूद है, चारकोल आ जाता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है तमाम टॉक्सिक गैसेस को। तो यहाँ पे भी आपके पास रिलेशनशिप बताया गया है कि गैस जो भी केमिकल्स आ रही हैं वो एक्टिवेटेड कार्बन जिसको क्या कर रहा है, जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं उनके पोर्स में जा रहा है, उसको पर्टिकुलर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ दिखाया गया है कि एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर द गैस मास एंड इट इज एब्जॉर्ब ऑल द टॉक्सिक गैसेस एंड वेपर्स एंड प्यूरिफाई द एयर फॉर ब्रीथिंग। आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास क्या आती है, केमिसॉर्प्शन की एग्जाम्पल आती है। यहाँ पे बताया कि व्हेन एटॉमिक मास इज एब्जॉर्ब ऑन द ग्रेफाइट सरफेस, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं बना रहे। अगर सरफेस पे आपके पास क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, सरफेस पे क्या बन रहा है, दोनों अगर ये रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट एनर्जी इसको अगर हम प्रोवाइड करें, हीट करने से कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं हो रहे बल्कि दोनों मिलकर रिएक्शन बना रहे हैं। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इरिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा, जिसके रिएक्शन में आपके पास केमिकल रिएक्शन जनरेट हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, एक केमिकल रिएक्शन जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, सेकेंडली आपके पास यहाँ पे आपके पास बताया कि वन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ऑन अ ग्रेफाइट सरफेस, ग्रेफाइट कार्बन सरफेस, so carbon monoxide is formed on heating the surface. After the absorption of carbon monoxide is deposited but not the atomic oxygen formation. ठीक है, अलग अलग नहीं बन रहा बल्कि एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स ऑलरेडी आपके पास बताई गई हैं कि ऑक्सीजन है, आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, और निकल और हाइड्रोजन की आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्बेंट प्रोसेस, अब 3 टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस हैं, उसको हम किस तरीके से कोरिलेट करेंगे। कुछ होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, कुछ बेस है हमारे पास कार्बन बेस्ड कंपाउंड, और कुछ हमारे पास पॉलीमेरिक बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। अब डिफरेंट इनके रिलेशनशिप है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्बेंट्स हैं।
अगर वो ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड्स हैं तो ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड्स आपके पास क्या हो रहे हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर्स के हो रहे हैं, इट्स मींस कि वो पोलर नेचर के हैं। कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं तो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स आर द हाइड्रोफोबिक नेचर, दैट इज मींस द नॉन पोलर कंपाउंड्स। कंपैरेटिवली दिस वन इज द पॉलीमर बेस्ड कंपाउंड्स। पॉलीमर बेस्ड कंपाउंड्स आपके पास क्या है कि वो पोलर नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं, ठीक है, पोरस मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में हो सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनकी, सिलिका जेल है, जियोलाइट्स है, ये आपके पास ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहलाएंगे। कंपैरेटिवली दिस वन इज द कार्बन बेस्ड कंपाउंड व्हिच इज रिलेट फॉर द एक्टिवेटेड कार्बन्स एंड द ग्रेफाइट। जियोलाइट्स आपके पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर शीट्स होती हैं। पॉलीमर बेस्ड कंपाउंड्स क्या होंगे, पॉलीमर बेस्ड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें आपके पास क्या होगा, पोलर नॉन पोलर की फंक्शनैलिटी मौजूद होगी। तो इट्स मीन यहाँ पे एग्जांपल आपके पास क्या दी हुई है, पॉलीमर्स की दी हुई है और रेजिन्स की दी हुई है। ये टाइप्स ऑफ एड्सॉर्बेंट्स हैं, यानी सरफेसेस की स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को रिलेट करेंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ एड्सॉर्बेंट्स मटेरियल, सिलिका जेल है। सिलिका जेल बेसिकली क्या है, ड्राइंग ऑफ रेफ्रिजरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आपके पास। हम अक्सर इसको यूज करते हैं अपनी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स वगैरह में होती हैं, तो इसमें सिलिका जेल्स हमें दिया जाता है, तो एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं, ठीक है, मॉइस्ट को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडली आपके पास क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर सीव्स, जियोलाइट्स दी हुई हैं। मॉलिक्यूलर सीव्स आपके पास क्या होती है, ऑर्गेनिक लिक्विड होता है जो पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड द थर्ड इज एक्टिवेटेड कार्बन। कार्बन आपके पास एक्टिवेटेड कार्बन है, तो इट्स मीन हम कोयले का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली वाटर प्यूरिफिकेशन, हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर, जितनी भी टॉक्सिक गैसेज होती हैं इनको इजीली प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द गैसेज, जितनी भी टॉक्सिक गैसेज होती हैं इनको इजीली रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन के बाद हाँ अगर हम जिक्र करना चाहें तो हम ग्रेफाइट का भी जिक्र कर सकते हैं। और ग्रेफाइट, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ये जो हैं इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। जिसमें अगर ग्रेफाइट का जिक्र कर रही हूँ तो वो भी आपके पास ड्राइंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा रहा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और रिमूवल ऑफ HCl फ्रॉम द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम द अल्कलाइजेशन प्रोसेस। तो डिफरेंट प्रोसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन और ग्रेफाइट का यूजेज कर सकते हैं। ये भी आपके पास एड्सॉर्प्शन के रिलेशनशिप में आता है। एंड द थर्ड इज पॉलीमेरिक रेजिन्स। पॉलीमेरिक रेजिन्स हम वाटर प्यूरिफिकेशन में या रिकवरी ऑफ प्रोटीन और एंजाइम्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसको एज अ सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड फॉर हाइड्रोजन एंड टोलिन के रिएक्शंस में। तो डिफरेंट, किसी को सेपरेशन करने के लिए, किसी को प्यूरिफाई करने के लिए, किसी को एड्सॉर्ब करने के लिए और किसी को टॉक्सिक फ्री करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तमाम ये एड्सॉर्बेंट मटेरियल्स हैं। अब रेजिन्स हमें पता है कि रेजिन्स बेसिकली क्या होता है, एक सॉलिड हाईली विस्कस सब्सटेंस होता है जो प्लांट या सिंथेटिक ओरिजिन से हमें मिलता है, कन्वर्टेबल इनटू द पॉलीमर। हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलीमर में। यूजली मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक जेल होता है। और यहाँ अगर हम जियोलाइट का जिक्र करें तो जियोलाइट आपके पास बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीड्स होती हैं जो कंसिस्ट करी होती हैं सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स होते हैं जिसमें टाइटेनियम और जिंक वगैरह टाइप के मटेरियल्स आ जाते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एड्सॉर्ब एट इक्विलिब्रियम डिपेंड्स टेम्परेचर, गैस वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट एंड द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट सरफेस। अब यहाँ पे हम क्या करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिलेट करें अकॉर्डिंग टू द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कि टेम्परेचर, गैस वेपर प्रेशर और स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे इसका क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, उस पर्टिकुलर सरफेस का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी यही इफेक्ट है हमारे पास एड्सॉर्प्शन के रिलेशनशिप में। द नेचर ऑफ सॉलिड और गैस इज ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रूल्स। हम सॉलिड का काम करेंगे और यहाँ पे गैस का काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। सेकेंडली आपके पास नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का जिक्र किया गया है अकॉर्डिंग टू एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। द बेसिक फीचर्स ऑफ द गुड एड्सॉर्बेंट, द लार्ज सरफेस एरिया। वही स्टडी आ गई कि अगर हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन से होगा। जितना सरफेस एरिया होगा इतनी आपके पास क्या होगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बिंग होगा तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ अवेलेबल ऑफ एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करेगा। सेकेंडली हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इजीली अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कि एड्सॉर्प्शन ऑफ डाइन बाय द चारकोल प्रोसेस में क्या इफेक्ट होगा कि इट इज फाइनली डिवाइड बाय द चारकोल स्टेट इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बताई गई है कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस बाय डाई चारकोल लेवल पे क्या है, यानी हम अगर सॉलिड सरफेस पे होगा तो क्या इसका इफेक्ट बनेगा, अगर मैं इसको पाउडर फॉर्मेशन में ले आऊंगी तो मेरे पास एड्सॉर्प्शन का लेवल क्या होगा, बहुत जल्दी रैपिड रिएक्शन दिएगा अकॉर्डिंग टू सॉलिड और पाउडर फॉर्मेशन में। इसी तरह से आपके पास एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय द चारकोल, एक डाई प्रोसेस में क्या रिएक्शन है और एक आपके पास गैस बाय द चारकोल रिएक्शन में क्या है। यहाँ पे आपके पास सॉलिड सरफेस दिया गया है
और तमाम आपके पास जितने भी एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर जितने भी आपके पास क्या है गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर सरफेस पे एक्यूमुलेट हुए हैं। तो इन दोनों के रिलेशनशिप से एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल प्रोसेस एंड एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय द चारकोल प्रोसेस आपके पास क्या रिलेशनशिप होगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। थैंक यू वेरी मच।